Hello, Scorpio people. Welcome to my love reading. It's a love reading for you guys based on love, love life, love relationship, partnership, bond. It's for married couples and for unmarried couples also. So it's a bi monthly reading from 15th of September to 30th of September. You can watch it as a Scorpio sun sign, Scorpio moon sign, Scorpio rising sign, and Scorpio Venus sign. Okay, since it's a love reading, so Venus sign, goddess and planet of love, Venus, is also given importance in this reading specifically. Okay, let me tell you one thing. This side could be your Scorpio people, this side could be your partner. Since this reading consists of two people, that is for your relationship, not one people, because relationship consists of two people. So this side could be your Scorpio, this side could be your partners, or vice versa. This side could be your partners, this side could be yours. So just flip the energies, take it as it resonates with you, because it's a general reading, collective reading for all Scorpios. So something will resonate, something will not resonate. So it's very natural and very obvious. So let's start with your reading. Take it as it resonates with your own life story and love story. Okay, so let's start with your reading. I'll be using 4 different oracle decks for this reading. Romance Angels Guidance deck will be used for guidance. Okay. Fine. Fine, let me start with your reading. This is the basic spread of your reading. Scorpio people. Well, the first card says, beware of what you're projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. This is what happens, in reality. कि अगर आप अच्छे हैं, if you're nice, you'll see, like, your perspective will be like that. It's magic of a perspective and nothing else. Sheer perspective. If you're nice, you will see nice in each and everything, goodness in each and everything, each and every people. And if you're not, then you will see that same thing in the other people also. So it is just a reflection of our own self, This is how it works. So this is the exact thing which is mentioned in this card. Beware of what you're projecting, of the qualities you admire in one another. For the qualities you admire in one another are the qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. It's nothing but our own reflection, what we see in others. नज़रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, perspective. Okay, let's see what the angel has to say. Make the effort. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Great love is worth
taking the steps you're guided to take. So you're being asked by the angel, by the universe, to make some effort in your love life, my dear Scorpios. Maybe you're facing some trouble issues, some kind of troublesome phases in your love life. So you're being asked to make some effort. हार्ड वर्क हर एक चीज़ में लगता है, चाहे आप जिम जाए वहाँ पे भी हार्ड वर्क लगता है, चाहे एडुकेशन हो, प्रोफेशनल फील्ड हो, कुछ भी हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर लाइफ इन जनरल, हार्ड वर्क मेहनत सब में लगता है, तब जाके आप सक्सेस पा सकते हैं. सो हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ उतर चढ़ाव आया होगा या फिर हो रहा होगा ऑलरेडी, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स दैट मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. ओके, सो देखिए कहाँ कहाँ फ्लॉज हो रहा है, गलती कहाँ हो रहा है. इंसान से गलतियाँ होती है, तो अगर गलतियाँ हो रही है किसी वजह से, किसी कारण, उसे प्लीज़ सुधारिए, तभी आप ग्रेट लव अचीव कर पाएंगे, वरना मुश्किल होगा लव को बचा के रखना. इसीलिए ये पॉइंट आया है, शायद आपको इसी पॉइंट पे वर्क करना है. आगे आगे देखते हैं रीडिंग में और क्या आता है स्कॉर्पियो पीपल. बट बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, what kind of attitude, what kind of nature you're projecting towards the other person, towards your partner. Be it a married one or unmarried one, whatever it is, your partner. Because you reflect your own self. So अगर कहीं गलती हो रही है तो प्लीज़ उसे सुधारे. मेक द एफर्ट. ओनली देन यू कैन अचीव ग्रेट लव, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड एंड गाइडेड टू डू दैट, टू डू such an effort. Make such an effort. Okay, moving on to the next card, Scorpio people. Romance. Cupid's arrow strikes. Cupid's arrow strikes. Let's see what the angel has to say. There's nothing to explain basically out here. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. रोमांस की बात आई है तो सोलमेट होना जाहिर सी बात है. Maybe the person who is already in your life, love life, maybe he or she is your soulmate. And soulmate अगर हो तो बॉन्ड वाकई में बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है, रोमांटिक होता है, लवफुल फीलिंग्स होता है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि सोल से सोल का कनेक्शन होता है वहाँ पे. सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता है. कोई भी रिलेशनशिप में अगर सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन हो, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर ना हो, तो वो बॉन्ड कभी भी फुलफिल्ड मात्रा में नहीं पहुँच सकती है. कभी नहीं. वो प्यार कभी नहीं उम्दा लेवल पे पहुँच सकता है. नेवर. सो कॉलिंग इन योर सोलमेट. And if you haven't got a soulmate in your life yet, then it's time you pray, you affirm, and you visualize. This will help you this will help both of you. It will help you bring together. It will help you. The prayers will bring you guys together. The visualization, the affirmation will bring you guys together. You will get your soulmate in this lifetime. This is what is being guided by the angels. Calling in your soulmate. If you feel that void, in your love life, so prayers के द्वारा, affirmations के द्वारा, visualizations के द्वारा आप अपना soulmate को पा सकते हैं. मेरे YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे डिवाइन ब्लेसिंग, जिसका नाम है चैनल का,
वहाँ पे आपको पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस मिलेगा। मेरा किया हुआ वीडियोस है, बनाया हुआ वीडियोस है, प्लीज़ उसे रेफ़र करें, जानिए मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। डिटेल्स वीडियो मिलेगा आपको वहाँ पे, सो प्लीज़ उसे रेफ़र करें। मैनिफेस्टेशन क्या होता है बेसिकली, जो थॉट्स, डिज़ायर्स या फिर विशेज़ हम लोग रियलिटी में, वास्तव में लाते हैं, फुलफ़िल करते हैं, उसी को मैनिफेस्ट करना कहते हैं हम लोग। दैट इज़ वॉट मैनिफेस्टेशन इज़। सो ये सब करें, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इट विल सर्टनली ब्रिंग you together. You'll get your soulmate. Moving on to the third card. It says new beginning. New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Well, the angel has to say, past life relationship. You have known each other before. हो सकता है आपका रिलेशनशिप, maybe it's a time for a new beginning of your relationship, you know. Maybe you're starting your, कुछ स्कॉर्पियोस शायद सोलमेट को पा चुके, कुछ ने शायद नहीं पाया, उनके लिए एफर्मेशन, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन ये सब ज़रूरी है फिर। और जो लोग ऑलरेडी पा चुके सोलमेट को अपने लाइफ में, उन लोगों के लिए नया बिगनिंग की बात हो रही है। यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट हमेशा वैसा ही होता है, यू नो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है तभी सोलमेट होता है, तभी सोल रिलेशनशिप इतना गहरा होता है, तभी रिलेशनशिप सोलफुल होता है, नहीं तो वरना सिर्फ फिज़िकल लेवल पे ही रह जाता है, बाहरी रूप में, बाहरी तौर पे, सुपरफिशियल लेवल जो कहलाता है। इट्स नॉट दैट डीप देन, यू नो, द बॉन्ड इज़ वेरी शैलो देन. So angels are saying it's your past life relationship. Maybe past lifetime से वो इंसान आया है आपके इस जीवन में, इसीलिए बॉन्ड शायद गहरा होगा। न्यू बिगनिंग की शायद शुरुआत हो रही है कुछ स्कॉर्पियोस के जीवन में, या फिर कुछ स्कॉर्पियोस के जीवन में ऑलरेडी हो चुका न्यू बिगनिंग, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग. It will certainly vary from Scorpio to Scorpio. So only take what resonates with you. Okay? You have known each other before. आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं. Okay. Moving on to this side. This card says, acceptance is the key to inner peace. Certainly, जब तक आप कुछ चीज़ या किसी इंसान को या फिर किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मन में शांति मिलती है क्या? शांति नहीं मिलती है. अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, चलता है दिलो दिमाग में, चिंता में. सो एक्सेप्टेंस बहुत पावरफुल एक चीज़ है, विच कैन गिव यू पीस, विच कैन प्रोवाइड यू पीस. So acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. Absolutely. जो जैसा है, जो सिचुएशन जैसा है, जो इंसान जैसा है, उसको प्लीज़ वैसे ही एक्सेप्ट करें, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें. कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, चेंज करने की कोशिश मत कीजिए. अगर कहीं कुछ खामियां आपको नज़र आए या फिर लगे ऐसा कुछ, तो समझाइए बेहतर तरीके से, लेकिन कंट्रोल प्लीज़ मत कीजिए. आपका रिलेशनशिप इससे हार्म पहुंचाएगा. रिलेशनशिप इससे बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि और डिटोरेट करेगा. सो at times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. See, that's what I said.
चेंज करना, किसी को कंट्रोल करना मत कीजिए। जो जैसा है इंसान उसे वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। कुछ चीज़ें, कुछ बातें पसंद नहीं आती है दूसरे इंसान के बारे में, तो उसे समझाइए, प्यार से समझाइए। देखिए क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है, सल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम के वजह प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए। फोकस प्रॉब्लम पे मत डालिए, प्रॉब्लम के सल्यूशन पे डालिए। लेकिन कंट्रोल इश्यूज़ चेंज करना, ज़बरदस्ती किसी इंसान को अपने तरीके से, मेरे तरह चलोगी तुम, मेरे तरह चलोगे तुम, मैं जैसा बोलूँगा, मैं जैसे बोलूँगी वैसे चलोगे तुम, एब्सोल्यूटली नो नो। इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो, कंप्लीटली। कभी भी ये कोशिश मत कीजिए। तो फिर प्यार करने का फ़ायदा क्या है? इज़न्ट इट? ये प्यार नहीं होता है फिर। लेट्स सी व्हाट द एंजल हैज़ टू से। हनीमून, enjoy the bliss of holiday time together. Honeymoon, it says, enjoy the bliss of holiday time together. जो स्कॉर्पियोज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स होगा। जो लोग प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे, और अगर आप प्रॉब्लम माइंडेड, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे, सी this is one aspect which has come out, which has come under the limelight, you know. So the solution or the guidance can be, आप लोग घूमने जाइए, ट्रैवल में जाइए, अपने आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए, यू नो, हैव सम फन टाइम टुगेदर, हैव सम मीनिंगफुल टाइम टुगेदर। बॉन्ड को और डीपन कीजिए। हनीमून पे जाइए, घूमने जानिए। हनीमून सिर्फ जीवन पे एक बार ही नहीं होता है, एक बार नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हनीमून उसी को कहला जाए या फिर कहा जाए। घूमने जाइए, एक साथ घूमिए फिरिए, मस्ती मजाक कीजिए, हैव गुड टाइम्स टुगेदर, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ऐसे बैठिए, एक साथ बातें कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, तभी तो आपका बॉन्ड मीनिंगफुल होगा, इज़न्ट इट? वरना इट विल बी शैलो, इट विल बी शैलो, डीप नहीं हो पाएगा। तो बॉन्ड को डीप होने का चांस दीजिए, मौका दीजिए, स्कॉर्पियो पीपल। And you guys are very deep. Scorpio guys are very deep. Your personality is certainly not a shallow personality. You look for meaning in things, you know. Moving on to the next card. Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Embrace each other. Embrace each other. See, यहाँ पे हनीमून की बात आई थी, हनीमून का कार्ड आया था यहाँ पे। तो you can combine these two. Embrace each other. Spend quality time with each other. Embrace मतलब क्या? एक दूसरे को फिजिकली एम्ब्रेस करना सिर्फ ऐसे ही नहीं, एक दूसरे को नेचर को एम्ब्रेस कीजिए, स्वभाव को एम्ब्रेस कीजिए, कंट्रोल इश्यूज हटाइए, जो कहा गया है यहाँ पे इस कार्ड पे। कंट्रोल इश्यूज हटाइए, चेंज करना एक इंसान को, ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हटाइए। ये बहुत डिग्रेडेड लेवल का थॉट है, isn't it? Think of the positive things, what you can do or what you can bring in your love life, my dear Scorpio people. Okay, let's see what the angel has to say. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. See, ये कंट्रोल इशू आया था इस कार्ड में. So these are all red signs in a relationship, certainly. These are all red signs, my dear.
You have to pay heed to these signs if you want to make your love life or love relationship a long lasting one. सुधार लाना पड़ेगा, वरना प्यार नहीं बचेगा. Isn't it? सोच के देखिए ज़रा. सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. देखिए क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसके लिए आपका लव लाइफ अफेक्टेड हो रहा है, स्कॉर्पियो पीपल. ओके, सो पे अटेंशन बिकॉज देयर आर साइंस एंड दोज आर कॉशंस, warning signs. Take it as a warning sign. So bring the necessary changes, bring the positive changes in your love life. Let's see. The next card says twin flames. It says twin flames. Your passion ignites. Twin flames. Your passion ignites. You know what twin flame is? Twin flame is also known as twin souls. Twin souls होता है एक ही सोल का दो हिस्सा. हम लोग सब एक आत्मा होते हैं ना, एक शरीर में एक ही आत्मा होता है, ऐसा ही हम लोग जानते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में सभी जो इंसान मौजूद है सभी ट्विन सोल्स के रूप में नहीं आते हैं. कुछ लोग होते हैं जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अपने सोल को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, कि तुम अलग जन्म लो, तुम अलग जन्म लो. डिवाइड कर लेते हैं एनर्जी के. सोल क्या है? एनर्जी है. इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तभी जाके ट्विन सोल होता है. इसीलिए ट्विन कहा जा रहा है. दोनों अलग अलग अपने जर्नीज़ करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. जर्नीज़ का मतलब ही होता है हम लोग का स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम लोग आते हैं इस दुनिया में, कुछ सीखने के लिए जो कि स्पिरिचुअली हम लोग को ग्रो करने में मदद करे. तो ये होता है ट्विन सोल, जिसको ट्विन फ्लेम्स भी बोलते हैं. इसीलिए ट्विन फ्लेम का बॉन्ड, ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप सोलमेट से भी बहुत बहुत गहरा होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, मैग्नेटिक होता है. सोलमेट से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिक होता है. यू नो, इट्स इलेक्ट्रीफाइंग. द बॉन्ड इज़ इलेक्ट्रीफाइंग, क्योंकि एक ही सोल का है ना, एक ही सोल का हिस्सा है दोनों. इसीलिए आपको अगर पता ना हो तो आज कुछ तो पता चला आपको इस बारे में, ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के जर्नी के बारे में. और अगर जानना है आपको तो प्लीज़ आप यूट्यूब में आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल में बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसे प्लीज़ पढ़िए, रेफ़र कीजिए. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, प्लीज़ रेफ़र टू दोज आर्टिकल्स, रेफ़र टू दोज वीडियोज़ प्रेजेंट इन यूट्यूब. बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको. ट्विन सोल का जर्नी इतना आसान नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्विन सोल का, ट्विन फ्लेम का जर्नी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. क्यों डिफ़िकल्ट है ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे, वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके, बट द रिलेशनशिप, द यूनियन, द बॉन्ड इज़ वेरी वेरी पैशनेट, वेरी वेरी मैग्नेटिक, वेरी इलेक्ट्रीफाइंग. सोलमेट्स के बॉन्ड से भी बहुत ज़्यादा गहरा, क्योंकि एक ही सोल का दो हिस्सा है. ओके, द एंजल गाइडेंस सेज free yourself. It's time to take back control of your life. If Scorpio people, if you are being controlled by your partner, then you are being asked and guided to free yourself by the angels, by the universe. Free yourself, my dear. It's time to take back control of your life. अपना कंट्रोल वापस लीजिए. एंड स्कॉर्पियो पीपल, इफ़ यू आर डूइंग दिस, बिकॉज स्कॉर्पियो पीपल टेंड टू हैव सच अ टेंडेंसी ऑफ कंट्रोलिंग, यू नो, कंट्रोल इश्यूज होता है स्कॉर्पियोज में.
तो इफ़ यू आर कंट्रोलिंग, then certainly, my dear, you have to change this habit of yours because it's of no good. It won't keep your relationship alive. ऐसे कोई भी इंसान रह नहीं पाएगा इस रिलेशनशिप में, इस तरह के बॉन्ड में, यू नो, चोक्ड फील करेगा। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करेगा हर एक मामले में, हर एक मुद्दे पे, तो ऑब्वियसली द अदर पर्सन विल फील चोक्ड, यू नो, the other person will feel choked, and the relationship, the bond, and the love will die eventually. So free yourself. It's time to take back control of your life. This is what is being guided by the angels, by the universe, my dear Scorpios. Okay, so now I'll be moving on to True Emotions Oracle deck. Let's see what is in store for you. Universe, please guide the Scorpio people and their partners in their respective love life. Please guide the Scorpio people and their partner in their respective love life. I'll pick up one card from this deck. Next, I'll pick up Fairies Oracle deck, a card from Fairies Oracle deck as a guidance in the form of guidance. One card from this deck. Okay, well, the True Emotions Oracle deck, the card says, this is how the card looks, and the card says, I don't know the reason behind this. Behind what, Scorpio people? You must be knowing better than me because it's your love story. I'm just here to convey the message and guidance. I don't know the reason behind this. हो सकता है आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे, कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भला इसका वजह क्या है. सो इट कुड बी दिस वे, इट कुड बी द reason for this, that you don't even know the reason behind your problem, the reason behind your problem. So be aware of the reason. अपने आप को लेके बैठिए, मी टाइम दीजिए अपने आप को, एनालाइज कीजिए अपने थॉट्स को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने एटीट्यूड को. देखिए आप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो आपके पार्टनर को ट्रबल कर रहा है. इट कुड बी ईदर वे स्कॉर्पियो, इट कुड बी फ्रॉम योर साइड, इट कुड बी फ्रॉम योर पार्टनर साइड एज वेल. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. सो यू हैव टू नो द रीज़न. इफ यू डोंट नो द रीज़न, हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, माय डियर? एंड फॉर नोइंग द रीज़न, you have to take time out from everything. You have to have me time. It's very, very necessary. It's mandatory. Having me time is mandatory in everybody's life. बहुत ज़रूरी है ये मी टाइम. अपने आप को लेके बैठिए, मन को शांत कीजिए, एकांत में बैठिए, वक्त दीजिए अपने आप को. देखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपसे. कुछ पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किया, जो आया है कार्ड के रूप में, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके बारे में सोचिए, गौर फरमाइए उस बारे में. और देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपसे, गलतियाँ कुछ अगर हो रही है तो, या फिर आपके पार्टनर से. क्रॉस वॉचर्स, दोज हू आर वॉचिंग, यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर थॉट्स. सो सर्टनली यू विल नो द रीज़न. देन आपका जो इनर वॉइस है ना, इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा. तभी जाके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस तक आपको आंसर मिलेगा.
खुद ब खुद मिल जाएगा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, किसी से हेल्प भी मांगना नहीं पड़ेगा। हम लोग सबसे कनेक्ट करते हैं बाहरी दुनिया से, सिर्फ खुद से ही कनेक्ट नहीं करते हैं, मी टाइम नहीं देते हैं खुद को। एकांत में चुपचाप बैठिए, मन को शांत कीजिए, दिल दिमाग को शांत कीजिए, शरीर को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तब जाके आपको रीज़न डेफिनेटली 100% पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है आपके रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम जो हो रहा है या फिर आप फेस कर रहे हैं, किस वजह से फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं, कैसे सुधार सकते हैं इस प्रॉब्लम को, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को। Well, the angels, fairies are saying magical blessings. Whatever you're going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Whatever you're going through, whatever problems you're going through, Scorpios, लाइफ हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, कांटे भी होते हैं। सो अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, फोकस सॉल्यूशन में होना चाहिए, प्रॉब्लम में फोकस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम में अगर फोकस होगा तो प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, सॉल्यूशन में फोकस होगा तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आंसर ढूंढिए, रीज़न जानिए। ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। सिर्फ पहचानिए अपने आप को, खुद से कनेक्शन जोड़िए, फिर जो आप फेस कर रहे उससे बाहर निकल पाएंगे आप। Okay, Scorpios, so this was your reading. Hope you liked and enjoyed it. So do subscribe to my channel and hit the bell icon for further notification of my videos. See you in my next reading. Till then, take care, bye bye, and wish you all the very best for your love life. Please do the necessary changes, whatever is needed to enhance your love life. Okay, see you in my next reading. Take care, bye bye.